अटेंडेंस प्लीज। आयुषी सिंह था। पिछले लेक्चर का कोई भी आपने आंसर नहीं दिया, यस सर नहीं कहा। आकांक्षा शर्मा, अंकिता जांगरा, कल्पना शर्मा, मोक्षिता, प्रभजोत, साक्षी, सपना, श्रेष्ठा राणा, साबिका अली, स्वाति भारद्वाज, अमरजीत, हिमांशु सैनी, मनीष कुमार, नितेश दुबे। आप भी बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हैं। नितेश दुबे, काइंडली बी रेगुलर। सौरभ राणा, सुशांत, लखन, आई डोंट नो भाई, पता नहीं क्या बात है, आप कहाँ हैं? हैव यू जॉइंड द क्लासेस और नॉट? यू वांट टू स्टडी और नॉट? काइंडली इन्फॉर्म। इफ यू आर नॉट able to attend the classes, kindly inform. Nilesh, Vivek Sharma, I don't know whether he has joined the school or not, but someone told, the clerk told that he has joined the school, but either pay the fees and attend the school, or please tell me so that I may struck off your name. पिछली बार साक्षी ने भी कोई आंसर नहीं दिया और श्रेष्ठा राणा ने भी कोई आंसर नहीं दिया। काइंडली बी रेगुलर and Ushi also be regular. So I'll give you 1 minute now, and after that we will start the lecture. 1 minute, please. So your 1 minute is now over, and we move on to the lecture. We were doing the disaster management, and disaster. In the disaster, I told you that we have two types of disasters: natural disasters and man-made disasters. So we were doing natural disasters, and we have done earthquake, and we have done flash floods. Now the third type of disaster we will now study today, that is lightning, and after that cloud bursting, landsliding, drought, storm, cyclone, and tsunami. And today we will start with lightning. Lightning, आपको पता है lightning क्या होती है? बिजली का चमकना, आकाश में जब बिजली चमकती है, that is called lightning. So lightning is also dangerous. It is a type of disaster. Why the lightning takes place? Actually, what happens is that it is a naturally occurring process है, अपने आप होती है, हम नहीं करते इसको. In this process, two electrically opposite, एक positive एक negative, positive and negative, two electrically opposite charged, we can say regions, or we can say clouds, temporarily gets neutralized. Neutralize हो जाते हैं क्योंकि positive negative है. High positive charge आ जाएगा below. Suppose that this is one cloud, and on the cloud at the top it will be a positive charge, and below it is a negative charge. And these positive and negative charges, after some time, they will increase in size, and then they will discharge with each other. Positive will attract negative, negative will attract positive, like this. And when they discharge, then lightning takes place. Lightning occurs. Lightning occurs in the, we can say, sky. As a result, what happens? Large amount of energy is released. बहुत सारी energy release हो जाती है. Large amount of energy is released. Giant, we can say. Giant spark it is, and large amount of energy is released. वो यहाँ तक दिखाई पड़ती है आपको, क्योंकि it travels with the velocity of light.
तो यहाँ तक साउंड बल्कि बाद में आती है. साउंड ट्रेवल्स स्लोली, लाइट ट्रेवल्स फास्टर. तो लाइट कम्स फर्स्ट, हमें वो चमक दिखाई पड़ जाती है पहले. आफ्टर दैट साउंड इज हर्ड. Actually, what happens, I told you that positive charge particles and negatively charged particles are there. Heavier negatively charged particles are below, they sink to the bottom, and positively charged particles, they remain at the top. And when these positive negative charges grow in size, a spark called lightning is there. Lightning can kill people. लाइटनिंग जो है वो लोगों को भी मार सकती है. कोई जरूरी नहीं है कि अभी बच ही जाए, आदमी बच जाए तो बच जाए, बट इट कैन किल पीपल और कैन कॉज हार्ट अटैक भी हो सकता है इससे. इंजरीज रेंज फ्रॉम सीवियर बर्न्स टू, वी कैन से, परमानेंट ब्रेन डैमेज. सीवियर बर्न से लेकर के परमानेंट ब्रेन डैमेज तक हो जाती है इसमें. ऐसे नहीं है कि एकदम से इंजरीज दे कैन बी फ्रॉम सिंपल बर्न्स टू सीवियर ब्रेन इंजरी. ब्रेन इंजरी हो जाती है, ब्रेन इंजर हो जाता है. तो एक बड़ा डेंजरस है ये लाइटनिंग. नाउ हाउ टू मैनेज लाइटनिंग. जैसे उसमें मैनेज किया था हमने अर्थक्वेक को, ऐसे ही हम इसको भी, लाइटनिंग को भी, क्योंकि है तो नेचुरल डिजास्टर, जो होना तो होना ही होना है. लेकिन इवन देन वी कैन सेव आवरसेल्व्स टू सम एक्सटेंट. So first thing is we use lightning conductor at the top of the building. बिल्डिंग के टॉप पर लाइटनिंग कंडक्टर बना दिया जाता है और उसका कनेक्शन अर्थ के साथ होता है. लाइटनिंग जब भी कभी स्पार्क होगा, दैट स्पार्क विल पास थ्रू द कॉपर वायर into the earth, and we can save ourselves, our building can be saved. Secondly is, one should not use umbrella during lightning. लाइटनिंग के टाइम पर अम्ब्रेला यूज नहीं करना है. अम्ब्रेला यूज करेंगे तो हो सकता है लाइटनिंग आपके अम्ब्रेले की जो रॉड है उसमें से पास कर जाए, एंड यू मे गेट हर्ट. हेल्प द विक्टिम. विक्टिम जो होगा उसको हेल्प करनी है. कैसे करनी है हेल्प? पहले तो अपना ध्यान देखना है कि हम भी ठीक है कि नहीं है. पहले evaluate our own situation and then see the situation around of the victim, and if we can help him, we should help. हो सकता है हार्ट अटैक हो गया उस बंदे को, तो ऐसे एकदम से उसको फिर टच नहीं करना है. एफर्ट शुड बी मेड फॉर देयर सर्वाइवल के लिए मेथड भी बनाओ. वी मे हैव फोन, वी कैन फोन द डॉक्टर, वी कैन कॉल द पर्सन्स. इन केस ऑफ इंजरी, अगर इंजरी है, द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन एज पर द ग्रेविटी ऑफ इंजरी. जितनी ग्रेविटी का मतलब कितनी इंजरी है उसको असेस करनी है इंजरी. पहले टांग टूटी पड़ी है या जली पड़ी है तो उसको नहीं हम छेड़ेंगे, because we are not doctors, but we can help only. First aid we can give only. If there is breathing problem, अगर उसको breathing problem है तब क्या करना है? तब भी भाई थोड़ा सा उसका ध्यान करना पड़ेगा. We can give air through mouth. Mouth to mouth जो है वो हम उसको एयर ऑक्सीजन दे सकते हैं. तो get under a huge tree. अगर कोई आप देख रहे हैं अभी बिजली द्वारा भी आ सकती है, तो ह्यूज ट्री के नीचे अगर हैं तो आप बच सकते हैं, क्योंकि द इलेक्ट्रिसिटी विल पास, द चार्ज विल पास थ्रू, डिस्चार्ज विल पास थ्रू दैट ट्री. सो दिस इज द थर्ड, वी कैन से, हैजर्ड or we can say disaster, that is light. After the lightning, flash floods were, we have studied lightning. Now we can go to cloud bursting. क्लाउड बर्स्टिंग. क्लाउड बर्स्ट होना एक बड़ी अजीब सी बात है. बादल का फटना कहते हैं इसको. बादल का फटना, बादल फट जाते हैं. एक क्लाउड बर्स्ट होता क्या, पहले थोड़ा सा स्टडी कर लें. ए क्लाउड बर्स्ट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े से समय में एक ही जगह पर पानी जो है वो गिरता है,
दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत से, और वहां पर एकदम से क्या होता है, वाटरफॉल्स। और वाटर भी, ये थोड़ा नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा वाटर गिर जाता है। लगभग 25,000 मीट्रिक टन, नियरली 25,000 मीट्रिक टन वाटर जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर गिर जाता है। तो उसका संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल। तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के कारण होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, थोड़ा सा समय में एकदम ही आता है ये। इट मे बी अकम्पनीड बाई हेल भी हो सकती है साथ में, थंडर, थंडर भी हो सकता है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, जो कि एक ऐसी कंडीशंस, फ्लड कंडीशंस क्रिएट कर देता है, दैट क्रिएट्स फ्लड कंडीशंस। क्लाउड बर्स्ट कैन, we can say, suddenly dump large amount of water. As I told, it is about 25,000 metric ton of water it falls down. होता क्या है actually? When I show you the figure, this is a cloud. When warm air current from the ground, this is warm air current from the ground, we can say, or below the cloud, we can say, that goes up, that rushes up, and ऊपर से falling rain drop है, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं ऊपर से, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, ये ऊपर जा रहा था और ऊपर से फॉलिंग रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं नीचे की ओर। क्या होता है, जो एयर करंट है इस एयर ड्रॉप्स को अपने साथ ही ले जाता है, ऊपर को साथ ही ले जाता है अपने। द रेन क्या होगा, कैरीज द, जो रेन ड्रॉप्स हैं विद इट, जो एयर है, इट कैरीज द रेन ड्रॉप विद इट, ऊपर को ले जाता है। हालांकि ये एयर जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे को गिर रही थी, रेन ड्रॉप्स, ये दीज वर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग डाउन, एंड दिस इज द वार्म एयर, इट गोज अप, द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन इन अ स्टेडी शावर। इनका जो रेन ड्रॉप्स का स्टेडी शावर बन जाता है, बहुत से रेन ड्रॉप्स हो जाती हैं, और एयर भी उतनी ही नीचे से गर्म आ रही है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेसिव कंडेंसेशन, यहाँ बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाती है एकदम से इन द क्लाउड्स, क्योंकि पानी मिल गया उसके अंदर, गर्म एयर के अंदर, तो कंडेंसेशन हो जाती है इन द क्लाउड्स। एज न्यू ड्रॉप्स दे फॉर्म, नई नई ड्रॉप्स बन जाती हैं। ओल्ड ड्रॉप्स आर पुश्ड बैक, ओल्ड ड्रॉप्स को पुश कर देती है एयर, ऊपर से नई ड्रॉप, ऊपर से पुश बैक। तो एक बहुत ही प्रेसिपिटेशन टाइप थिंग यहाँ पर हो जाती है, एक्सेसिव कंडेंसेशन हो जाती है। तो old drops are pushed back into it by the updrift. This happens. This is also known as orography, orographic lift. Orographic lift it is called, and large amount of water falls down. Rain falls down in a steady shower. This results in an excessive condensation, or we can say precipitation, and new drops are formed and old drops are pushed back. Old drops push back हो जाती हैं and new drops are formed. So this is how the cloud bursting takes place. But remember, it is an extreme amount of precipitation in a short period of time. It may be accompanied by hail and thunder capable of creating flood conditions. Flood conditions इससे हो जाती हैं. So we can say cloud burst is there now, and large amount of water, as I told you, it falls down. A heavy rain is not always due to cloud burst. कोई heavy rain आ गई तो ये नहीं cloud burst है, क्योंकि उसमें precipitation नहीं होता, condensation नहीं होती, because the amount of water जो उसमें आता है is less, कम होता है पानी। और cloud burst जो है, it can be very dangerous, especially it lasts for several hours, कई बार घंटों तक होता है cloud burst, very dangerous. It may cause loss to human life and property.
ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को भी लॉस हो जाता है। ये है इसमें पंगा, आसान नहीं है। बहुत पानी आता है एकदम से, सारे बह जाते हैं, नदी नाले फट जाता है, जैसे कहते हैं बादल फट गया है। और इवन बिल्डिंग्स भी बह जाती हैं साथ ही, अगर बिल्डिंग कोई रास्ते में आ गई है तो। A cloud burst can be predicted. It can be predicted 2-3 hours back only, and not 2-3 days before. It can be predicted 2-3 hours before. It is sudden heavy rain, storms cause extreme loss, but it can also be managed somewhat because it is a natural process. तो होनी है, तो अगर होनी है तो but it is very rare, not always. ये नहीं कि बरसात शुरू हो गई है तो अब क्लाउड बर्स्ट होगा ही होगा, not necessary. That condition अगर है तब होगी। We can introduce management में, we can introduce better warning systems। जो फ्लड होनी है तो कम से कम फ्लड का पता लग जाए आगे लोगों को, वार्निंग सिस्टम्स हों। हम अपने घर को ऐसे बनाएं, अपने सेंटर्स को ऐसे बनाएं कि फ्लड को टॉलरेट कर सकें, मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर हो ज्यादातर और हाइट पर हो, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अब द फ्लड लेवल से ऊपर हो। ये नहीं कि भाई एकदम से नीचे ही बना दिया आपने, थोड़ा दूर हाइट पर जाकर के मकान बनाए एट सम हाइट। वी कैन टैकल क्लाइमेट चेंज है तो उसको हम टैकल करें, देखें भी अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अपने आप को पहले संभल जाएं। ट्रीज को प्लांट करें स्ट्रेटेजिक मैनर में, जहां भी लगता है कि क्लाउड बस्ट होकर के ये नाला जो है इसमें पानी आएगा तो उससे पहले ही ट्रीज प्लांट कर दें, उससे पहले ही हम वहां पर वाटर स्टोरेज एरियाज बना दें, सॉइल की कंडीशंस को इम्प्रूव करें, फ्लड बैरियर्स ज्यादा लगा दें, रोक सकें ताकि फ्लड को एक जगह, क्योंकि अगर ऐसे पानी आ रहा है तो डिस्प्लेस बैरियर्स लगा दें। बैरियर्स जो है दे विल स्टॉप द वाटर। एकदम से फ्लड नहीं आएगा, वो तो हो ही गया, क्लाउड बर्स्ट तो हो ही गया, लेकिन फ्लड नहीं आएगा एकदम से। इंक्रीज स्पेंडिंग इन फ्लड डिफेंस पर ज्यादा पैसा लगाएं। ये नहीं कि भाई उसको उतना ही पैसा जितना यूज हो रहा है उस एरिया में, जहां आपको लगता है इस एरिया में ज्यादा आ रहे हैं, जैसे हिमाचल में कुल्लू एरिया में ज्यादा आपका ऐसा फ्लड आता है जो कि क्लाउड बर्स्ट है। फिर वाटर स्टोरेज टैंक्स मैंने कहा बना लीजिए जगह जगह पर। तो ये इस तरह से हम वी कैन control. We cannot stop it because it is a natural process, but we can control this process. So cloud burst is there. Then the next, after the cloud burst, fifth is landsliding. Landsliding. This is also a natural process. क्या है landsliding? Sliding. It is the process of displacement of soil or rocks or both. Rocks, soil or both दोनों गिर जाते हैं from their place ड्यू टू, क्या क्यों गिरते हैं? वेदर चेंज होता है, केमिकल एक्टिविटी होती है एंड हैवी रेन हो सकती है, एनीथिंग। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? वी कैन से डिफॉरेस्टेशन है, मैंने बताया था उस दिन भी, फॉरेस्ट को काट देते हैं। टू मच एग्रीकल्चर बहुत करते हैं हम, ज्यादा ही जमीन है, जो जमीनें पहाड़ियों पर हैं हम उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं स्लोली एंड स्लोली। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं, हाउसेस को बनाते रहते हैं पहाड़ों पर। माइनिंग करते हैं, लाइमस्टोन है जैसे निकालना है तो माइनिंग कर रहे हैं हम इधर स्टोन एरिया में और इधर रेणुका एरिया में, ये आपके सिरमौर में ही। सो वी आर डूइंग माइनिंग, सो लाइमस्टोन की मार्बल को निकाल रहे हैं, चिप्स को निकाल रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो that can be the cause of landslide also. So due to these activities sometimes क्या होगा, rivers are blocked and they cause landslide. Due to landslide क्या होगा, houses may tumble down, there may be loss to trees, crops, human life को भी लॉस हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं। आपने शायद सुना होगा कि इधर मनाली जाते हुए एक ऐसा पहाड़ आता है कि उसमें बार बार हर साल ही गिर जाता है वो, एवरी टाइम, और बसेस को भी रोकना पड़ता है, या कई एक दो बसें भी उसके बह गई थी उसके अंदर ही।
So it is very difficult to control it. But even then, if we take precautions, then we can do it. That would be called management. What is management? जहाँ लैंड स्लाइडिंग होनी है, जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज हैं, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन, और वी कैन से कंस्ट्रक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर बनाना ही है जरूरी तो उस एरिया में कंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दो भी, यहाँ पर सिर्फ एक ही मंजिला मकान बनेगा या 10 मकान नहीं, 3 ही मकान बनेंगे। जो पास करना है नक्शा गवर्नमेंट ने, तो उसको वो देख। सेकेंडली क्या हो सकता है इन लैंडस्लाइड सेंसिटिव एरियाज में, क्या हो सकता है, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। ये तो हर जगह ही होगा, जहां भी पानी की बात आएगी, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ताकि वो उनकी जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ करके रखें, उसकी रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ करके रखें। कंक्रीट आरसीसी वॉल्स लगा दें, जहां भी सपोर्ट देनी है हिल साइड को, मान लो ये हिल है तो हिल को स्लोप देना है यहाँ पर, तो एक आरसीसी वॉल लगा रहे हैं 3-4 फीट की। तो आरसीसी वॉल से क्या होगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका बेस जब रुक गया तो ऊपर का एरिया भी रुक जाएगा। वायर क्रेट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड, पहले ही बताया था मैंने, वायर क्रेट होते हैं, वायर लेकर के जालीदार, उसके अंदर स्टोन डाल दिया और स्टोनों को, उस स्टोन को लपेट दिया, उस वायर में बांध दिया, टाई कर देते हैं उसको, और उसको सड़क के साथ साथ लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड नहीं होता। ये नदी के किनारे भी लगाते हैं, फ्लड्स में भी काम आता है, बताया था मैंने आपको, तो फ्लड्स में भी काम आता है। तो फिर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड इन ए लैंडस्लाइड एरिया। जो लैंडस्लाइड सेंसिटिव एरिया है वहां यानी पानी को खड़ा होने दिया एक जगह, क्योंकि स्लोली एंड स्लोली दैट वाटर विल गो डाउन एंड योर लैंडस्लाइड विल टेक प्लेस। वार्निंग साइंस मस्ट बी पुट अप ऑन द रोड्स। लैंडस्लाइड सेंसिटिव एरियाज में वार्निंग साइंस लगा दो कि भाई ये लैंडस्लाइड एरिया है, तो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि पहाड़ी गिर जाए उनके ऊपर। तो वहां पर पहले से ही एक तो तरह से वार्निंग सिग्नल्स या साइंस लगा देने चाहिए, सो दैट पीपल कैन रन अवे एट वंस। फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है कि हो जाए तो भाई उनको रिहेबिलिटेट करना है, लोगों को, अफेक्टेड पीपल हैं आफ्टर द लैंडस्लाइड, दे शुड बी स्टार्टेड, दो आपका रिहेबिलिटेशन है, शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द मिसहैप होने के बाद वी शुड डू। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से नेचुरल डिजास्टर, दैट इज ड्रॉट। अब ड्रॉट क्यों होता है, इससे कई कारण है, पता ही नहीं लगता ड्रॉट। इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड लीस्ट अंडरस्टूड ऑफ ऑल हैजर्ड्स। जितने भी हैजर्ड्स हुए हैं नेचुरल आपके, वो सबका कुछ समझ आ जाता है, लेकिन ड्रॉट का समझ ही नहीं आता क्या होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, द मोस्ट कम्प्लेक्स है ये, लीस्ट अंडरस्टूड है। ए ड्रॉट मीन्स होता क्या है, पीरियड ऑफ ड्राइनेस, ड्राइनेस होता है, उसको हम ड्रॉट बोल देते हैं। वैसे तो कहने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ड्राइनेस होता क्यों है? ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक पानी नहीं आता। पीरियड ऑफ ड्राइनेस, शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ए ड्रॉट कैन लास्ट फॉर सम डेज टू मंथ्स, कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक चलता है, इवन ईयर तक भी चल जाता है। इट मे बी द शॉर्टेज ऑफ, क्या क्या शॉर्टेज हो सकती है, एटमॉस्फेरिक जो आपका है वो भी हो सकता है, उसमें पानी कम हो सकता है एटमॉस्फेयर में। सरफेस वाटर, जो पानी हम पीते हैं यहाँ पर नदी नालों का सरफेस वाटर है, उसमें शॉर्टेज हो जाती है। और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के नीचे कुएं आदि हैं जैसे, उनका पानी सूख जाता है। तो कहीं भी हो सकता है ड्रॉट, सरफेस एरिया में भी हो सकता है और ऊपर वाले एरिया में भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में, और ग्राउंड वाटर में भी हो सकता है। इट कॉजेज डैमेज टू क्रॉप्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट, हर चीज को ये नुकसान पहुंचाता। क्रॉप्स हैं सूख जाती हैं, होती नहीं आगे के लिए, फ्रूट्स खत्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। इट मेक्स लैंड यूजलेस, अपर पार्ट जो है उसका वो यूजलेस हो जाता है, उसको खराबी आ जाती है उस पार्ट में, कई सालों तक वो ठीक नहीं होता, फिर सॉयल अनफर्टाइल हो जाता है अपर पार्ट।
इट हैज द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं, एनवायरमेंटल लॉसेस हो जाते हैं, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है इसका। कॉजेज इसके क्या है जो हम समझ सकें अभी तक, being a science student or being a physical education student, we can learn causes are land and water temperature goes higher. लैंड का टेम्परेचर भी, पानी का टेम्परेचर भी हायर हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि लैंड का टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है। चेंज इन एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन में चेंज आ जाता है, वेदर पैटर्न में चेंज आ जाता है, गर्मी की जगह सर्दी हो रही है, सर्दी की जगह बरसात हो रही है, पता ही नहीं, अभी तक बरसात हो रही है इस साल, अभी से शुरू हो गई, और गर्मी हुई नहीं इस बार, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्न चेंज, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। डिक्रीजेज इन सॉयल मॉइस्चर, सॉयल का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, तो मॉइस्चर जो सॉयल है आपकी उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। सप्लाई ऑफ वाटर इज लेस एज पर डिमांड, डिमांड ज्यादा है, लोगों को ज्यादा पानी चाहिए और सप्लाई कम हो रही है। टाइमिंग्स ऑफ रेन डू नॉट मैच द एग्रीकल्चरल सीजन, मैंने बीजनी गेहूं है और मुझे पानी चाहिए, वो पानी आ रहा महीने बाद या एक महीना पहले आ रहा है बारिश, तो क्या है, रेन जो टाइमिंग है, टाइमिंग्स ऑफ रेन जो है, डू नॉट मैच विद द एग्रीकल्चर सीजन, एग्रीकल्चर सीजन इसमें मैच नहीं कर रहा है आजकल, ये बड़े एक दिक्कत आ रही है। इससे क्या होता है, ड्रॉट जल्दी आता है, सो अगर नहीं करेगा मैच तो फिर हमें नुकसान होगा। सो नाउ हाउ कैन वी मैनेज द ड्रॉट, वी कैन से, दो मैंने कहा था आपको, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन टेक प्रिकॉशंस ओनली एंड वी कैन सेव अवर सेल्व्स टू सम एक्सटेंट। मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज, तो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग करो वाटर की, जो पानी नीचे गया है जमीन में उसको वापस लाओ, वापस ला के फिर उसको अंदर जाने दो, रिसाइकलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर वी कैन। सेकंड इज प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को चल रहा है कि चलता ही रहे, हाथ धो रहे हैं तो नल का खुला ही रहे, नो, इट इज वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। इवन की किचन वाटर है, इट शुड गो टू किचन गार्डनिंग, ताकि उसमें से जो पौधे हैं या आपके प्लांट्स हैं, दे कैन यूज दैट वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो छत पर, जो टीन वाली छत है पार्टिकुलरली, वैसे तो लेंटर से भी हो जाता है थोड़ा स्लोप देकर, दैट वाटर इज कलेक्टेड एट द बॉटम, बिल्डिंग के बॉटम पर वो पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बेशक मशीन से साफ करके, बेशक ऐसे ही जैसे भी उसके लिए यूज करना है, इट कैन बी यूज इन फैक्ट्री आल्सो, इट कैन बी यूज इन प्लांटेशन आल्सो, it can be used for washing clothes also, and in case of emergency it can be used for drinking also, but थोड़ा clean करना पड़ेगा उसको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड इन ईच हाउस। पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन, वी कैन से, पब्लिक को इन्फॉर्म करो कि भाई पानी को संभाल के रखो, उसके बताओ भाई सूखा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एवरीथिंग शुड बी टोल्ड टू द पब्लिक, मोटिवेट करना चाहिए उनको, एजुकेट करना चाहिए उनको। सीजनल क्लाइमेट को फोरकास्ट करो, जो सीजनल क्लाइमेट है, अब जो बरसात आने वाली है, पहले जैसे आजकल बड़ी अच्छी फोरकास्ट होती है, पता लग जाता है पहले ही कि हाउ मच रेन इज कमिंग फॉर हाउ मेनी डेज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पानी नहीं आ रहा तो ड्राइनेस के लिए भी इंफॉर्म करना चाहिए कि ड्राई रहेगा इतना एरिया, तो ये भी आजकल इंफॉर्मेशन मिल रही है। कलेक्टिंग पॉलीथीन में पानी को, पॉलीथीन एक, जैसे एक कोई ऐसा वीगन से पिट बना लिया, उस पिट में अंदर प्लास्टिक की शीट बिछा दी और ऊपर से पानी को आने दिया, चाहे डायरेक्ट वाटर आ जाए चाहे इनडायरेक्ट वाटर आ जाए, और उसमें पानी इकट्ठा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक शीट है, वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट, द वाटर विल रिमेन देयर, इट कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। प्लास्टिक शीट से पानी कलेक्ट करते हैं, पॉलीथीन शीट से वी कैन से।
प्लांट सच ट्रीज इन बैरन लैंड विच एब्जॉर्ब लेस वाटर, ऐसे प्लांट्स लगाओ ताकि उसमें पानी कम एब्जॉर्ब हो और उसमें पानी कम लगे। जैसे कहते हैं ना, बबूल का पेड़ जो है वो राजस्थान में रेगिस्तान में लगाया जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है कम पानी चूसती है लेकिन हरा भरा रहता है। तो ऐसे प्लांट्स को लगाया जाए। प्लांटेशन जो है वो अकेले ना करें, ग्रुप प्लांटेशन करें। ग्रुप ग्रुप प्लांटेशन शुड बी एनकरेज। जैसे 1000 बच्चा है स्कूल का, एक एक प्लांट भी लगाएगा, दो दो प्लांट लगाएगा, 2000 प्लांट लग जाएंगे। एक एक प्लांट लगाएगा, 1000 प्लांट लग जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू सेव दीज प्लांट्स। हम लगा तो देते हैं प्लांट्स को, सेव नहीं करते हैं। दैट शुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अवर माइंड, दैट वी हैव टू सेव द प्लांट। बच्चों को प्लांट लगाने का ठीक है, लगवाइए आप उनसे, टीचर से प्लांट लगवाइए, किसी ग्रुप से प्लांट लगवाइए, लेकिन उस प्लांट्स को आप उनको पालने के लिए फिक्स कर दें कि दिस प्लांट इज योर्स, दिस प्लांट इज योर्स, दिस प्लांट इज योर्स, एंड वी विल सी दीज प्लांट्स आफ्टर 1 month or so, and then we will see that whether the plant has survived or not. Survival is very important. Plantation से भी ज्यादा survival important है. Then we go on to the next, we can say, hazard, we can say, or that is storm or strong wind. Strong wind है या storm है, this is also important. Strong wind भी जो है वो तंग करती है कई बार, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं आप, स्टॉर्म क्या कर सकता है, यू नो वेरी वेल। जब तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, क्या होता है, घर के कपड़े कुपड़े सब उड़ जाते हैं, छत टीन उड़ जाती हैं, छतें जो टीन की हैं कई बार टीन उड़ जाती है, कई बार कोई भी सामान पड़ा हो छत पर वो उड़ जाता है। दैट इज वेरी डेंजरस, सो दिस शुड बी आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। सो स्टॉर्म, व्हाट इज स्टॉर्म? विंड क्या है पहले? विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक यहाँ एयर है, एक यहाँ एयर, इसमें प्रेशर का फर्क आ जाता है। ये हाई प्रेशर पर है, मान लो एक लोअर प्रेशर पर है, जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे सिमिलरली विंड आल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस ऑफ इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एयर स्ट्रांग होगा। Difference of the atmospheric pressure exists more, and then what will happen? The winds will be, एक की स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, that depends on the difference of pressure। एकदम भी जा सकता है और slowly slowly भी जा सकता है। तो based on we can say the average strength of the speed or duration etc, the winds have various names। उसको बहुत सारे नाम दे दिए हैं हमने। one is called breeze, one is called gale, one is called storm, one is called hurricane। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, कहीं ब्रीज, कहीं गेल, कहीं स्टॉर्म, कहीं हरिकेन है, सब ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट हमारे लिए अभी लगभग सेम है। सो winds are also based upon the, we can say, as per their hotness or coldness. Wind, it can be divided into hot air, a hot wind we can say, cold wind, slopy wind, and conventional, convectional। कन्वेक्शन आपको पता ही है, कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे पानी में अगर हम पानी गर्म करें, एक ड्रॉप डाल दें इंक की, तो इंक ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर ऊपर ऊपर, झड़ी कर, कन्वेक्शन है। तो एयर में भी ऐसा हो सकता है, कन्वेक्शनल करंट हो सकता है। तो ये हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी, स्लोपी भी। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होंगी वो कहाँ होंगी? मैंने बताया आपको, लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट्स में होगी, एकदम लार्ज और एकदम लो प्रेशर, लार्ज से लो पर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर एसोसिएटेड समटाइम्स विद हरिकेन। हरिकेन बताया, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हरिकेन भी आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आर एसोसिएटेड विद हरिकेन्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रीज गिर सकते हैं, पावर लाइंस गिर सकती हैं, they can cause damage to the, we can say, life and also to the property।
So these can also be managed, but I told you not. We can say not proper management, but precautions we can take. First of all is get indoors if possible. फटाफट अंदर चले जाओ, जगह लगा के स्टॉर्म आने वाला है, गो इनसाइड, तो अंदर हवा कम होगी, बाहर ज्यादा आएगी. इफ इनसाइड पहुंच जाओ, द स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, विंडो से दूर रहो, बंद कर लो विंडो को, एंड मूव टू द बेसमेंट, बेसमेंट एरिया में चले जाओ, वहाँ हवा कम होगी. गवर्नमेंट शुड इशू ए हाई अलर्ट व्हेन हाई विंड्स आर प्रेडिक्टेड. जब हाई विंड्स होंगी तो गवर्नमेंट को जो है वो पहले से ही अलर्ट कर देना चाहिए लोगों को. इफ ड्राइविंग, अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे, देन स्पीड कम कर लो, लो डाउन योर स्पीड, एंड कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट व्हीकल, व्हीकल से फ्रंट दूर रहो. सो कीप योर वी कैन से रूफ यार्ड्स क्लीन, उनको भी क्लीन रखो. तो इस तरह से आप स्टॉर्म से बच सकते हैं. So we now go up to storm only, cyclone and tsunami we will do tomorrow. Thank you.